So welcome back second year. Today I am with a very exciting topic, and it is the continuation of the previous one. We were talking about nephron and the blood circulation in the nephron. Afterwards we talked about the hormonal control about that. So today we are going towards the kidney stones and basic infections which are there in the urinary tract. So what is kidney stones? Basically it is termed as pyelonephritis, and it is basically when the small granules like solutes are gathered up and they are like going back from the ureters into the pelvis or somewhere else in the kidney and get gathered or accumulated there. So they make a stone or pebble like kind of thing, and that thing is termed as kidney stones. So here there are many types of like urinary tract infection. The urinary tract infections are most common in females as compared to the males. If we are talking about the comparison and the ratio, like in females that is 50 times more a chance to get infected with a urinary tract infection, while in males it is the chance of or the probability is lesser. So in males that is lesser because of a very long that urethra and all that is approximately 8 inches in males, and while that is 1.5 inches in case of females. So there are so many urinary tract infections. For example, we are having the cystitis, which is the infection in the urinary bladder. Then we are having with the pyelonephritis, which is the infection in the kidney, and then we have a lot many more. So here there are many agents which are causing the urinary tract infection, in which the bacteria are most common. And most common bacteria which are causing this urinary tract infection are like Enterobacter, that is Neisseria gonorrhea, that is like Treponema pallidum, and another is the Escherichia coli, which you are familiar with. So here there are many causes of the urinary tract infection, or if we are talking about kidney stones, so there are many causes. Number one is like hypercalcium level in the blood, that is known as the hypercalcemia. Hypercalcemia means that there is more calcium level within the blood. It might be caused due to the more oxalate level in the blood. So here if the calcium level is more in the blood, that may cause kidney stones. And if the oxalate ions, that is C2O4, and here it will be -2, oxalate ions are more in the blood, then that may cause the kidney stones. And in amino acids, if we are having a hyper consistency or more value of cytosine, then it is, sorry, it's not cytosine, it is cysteine. Cysteine is the amino acid which is there more in the blood and causing the kidney stones there. So if we are going to categorize them in terms of like percentage, then we are having 70% of the kidney stones due to the calcium oxalate when they are accumulated, 15% are due to calcium phosphate, and 10% are due to the uric acid. When uric acid amount of the uric acid is getting more in the blood, more than that of that certain limit, so that is causing the urinary tract infections. Certain others as well, but हम यहाँ पे सिर्फ kidney stones की बात करें तो kidney stones को हम categorize करें यहाँ पे कि the stones are mostly of the type of calcium oxalate or due to calcium oxalate. 15% are due to calcium phosphate when it is getting accumulated, and 10% because of the uric acid. So effects इसके ये होते हैं कि आपके पास when calcium oxalate is more, so urine become more acidic, its pH get lower, and when it is more in terms of calcium phosphate, then the urine become alkaline. और फिर आपके पास जो है जब यूरिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है यूरिक एसिड, बिकॉज आपने पीछे भी पढ़ा है कि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. सो दे मस्ट बी एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी. दे आर द डेंजरस नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स एंड दे मस्ट नॉट बी accumulated within the cells and in the body, because they will inhibit or they will affect the physiological role of the cell negatively. So we must have the right amount of these things to be within the cells, and the excreta should be eliminated. तो ये usually excreta में आता है, और basically अगर uric acid की quantity consistently ज़्यादा होनी शुरू हो जाए तो हमारे पास urine is becoming persistently acidic. So here are the treatment for this kidney stones. अगर हमारे पास kidney stones हो जाएं तो फिर उनके treatments क्या होंगे? So in treatments we have some surgical and non-surgical things. Open surgery अब इतनी common नहीं है,
एंड लाइक जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं दे आर गोइंग टूवर्ड्स द लिथोट्रिप्सी. सो लिथोट्रिप्सी में हमारे पास दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं. Number one is the extracorporeal shock wave lithotripsy, which in short is termed as ESWL, and the other one is this one, percutaneous nephrolithotripsy, which is like PCNL. अच्छा, अब होता ये है कि when the stones are like smaller and they can be treated effectively by the wave kind of mechanism, तो फिर इसको follow किया जाता है. And if the stones or pebbles are larger in size, तो फिर आपके पास PCNL is the most effective treatment जो nephrologist recommend कर रहे होते हैं. ओके, अब अगर हम ESWL की बात करें तो ये बहुत ही आसान सा एक ट्रीटमेंट है. इट इज़ जस्ट लाइक द लेज़र काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. अब इसमें क्या होता है कि शॉक वेव्स आर क्रिएटेड आउटसाइड द बॉडी, द प्लेस इज टारगेटेड, और वहाँ पे अब मतलब इंटरनली देयर इज़ नो प्रोसीजर. आपके पास एक्सटर्नली उन शॉक वेव्स को थ्रो किया जाता है टुवर्ड्स दैट पार्ट, और जो पेबल है या जो स्टोन है दैट इज़ गेटिंग ब्रेक डाउन इनटू सर्टन स्मॉलर पेबल्स और फ्रेगमेंट्स, और वहाँ से फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू दैट इज़ गोइंग आउट, दैट इज़ फ्लश्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. और अगर हम PCNL की बात करें तो PCNL में ये होता है कि इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर, लेकिन दैट इज़ नॉट लाइक दैट ऑफ द ओपन सर्जरी. बट इसमें हमारे पास क्या होता है कि अ ट्यूब इज़ इंसर्टेड इनसाइड द बॉडी, और जब वो ट्यूब इंसर्ट की जाती है तो देयर इज़ अ पाथवे मेड, लाइक उस पाथवे से हमने जो भी चीज़ पास करनी है वो हम पास कर सकते हैं. लेकिन हेयर द थिंग्स आर नॉट पास्ड, बल्कि होता ये है कि एक आपके पास स्कैनर उसके साथ लगा हुआ होता है. वो स्कैनर आपको मॉनिटर के ऊपर दिखा रहा होता है कि वेयर दिस इज़ गोइंग इनसाइड द बॉडी. अब होता क्या है कि हमारे पास जब वो स्कैनर उसको दिखा रहा है तो हम उसमें साथ ही आपने एक सकर अटैच किया हुआ था उस ट्यूब के एंड के ऊपर. वो सकर उस पेबल को सक कर लेता है, जो भी स्टोन है, जो भी, ये यूजुअली आपके पास उस केसेस में होता है जब व्हेन देयर आर सिस्ट्स नॉट स्टोन्स एक्चुअली. सो वो सिस्ट क्योंकि बहुत बड़े साइज़ की भी होती हैं, सो एक गोल्फ बॉल के साइज़ की हो सकती है और बहुत छोटी भी हो सकती है, तो उनके लिए यूजुअली ये ट्रीटमेंट प्रेफर किया जाता है. सो हियर आपके पास वो कोई ओपन सर्जरी नहीं होती, बट देयर आर 2 to 3 कट्स, स्मॉलर साइज़ के 2 से 3 कट्स होते हैं जिसके थ्रू वो ट्यूब्स इंसर्ट की जाती हैं, और वो ट्यूब्स इंसर्ट करके उस पेबल को श्रिंक करके उस ट्यूब में सक कर लेते हैं, और उस सकर के थ्रू वो दैट इज़ लाइक एलिमिनेटेड आउट. सो ये हमारे पास तब फॉलो किया जाता है प्रोसीजर, थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल प्रोसीजर है ये, और इसको तब फॉलो किया जाता है जब हमारे पास स्टोन्स आर ऑफ अ बिगर साइज, राइट. और ये जो है इसके साथ की एक वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगी जब ये लेक्चर आपके पास आएगा, तो इसके साथ आपको एक वीडियो मिल जाएगी. सो उस वीडियो में यू वुड हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ दिस, दैट हाउ दिस टेक्निक इज़ वर्किंग. ओके, सो हियर इट इज़ द किडनी फेलियर नेक्स्ट. सो किडनी फेलियर में अगर हम इसको डिफाइन कर लें कि एक्चुअली व्हाट किडनी फेलियर इज़, सो हम कहते हैं कि व्हेन द किडनी इज़ अनएबल टू फिल्टर द ब्लड एंड व्हेन इट इज़ अनएबल टू रीअब्जॉर्ब and like when it is going to not going to produce that adequate amount of urine, और अगर उसकी कंसिस्टेंसी यानी डाइल्यूशन और कंसनट्रेशन प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं रह रही, सो दैट इज़ द केस जब हम कहते हैं कि किडनी इज़ एक्सपायर्ड और इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. तो उस को एक्सप्लेन करने के लिए हम कहते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली किडनी फेलियर. अच्छा, अब किडनी फेलियर के बहुत सारे कॉजेज़ हैं, और इनमें से एक अभी आपने रिसेंटली पढ़ा विच इज़ किडनी स्टोन्स. इसके अलावा भी बहुत सारे कॉज हैं जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं एक्सेट्रा, अभी हम उसको डिटेल में देखते हैं. सो स्टोन्स के अकॉर्डिंग स्टोन्स आर द मेजर कॉज ऑफ द किडनी फेलियर, एंड स्टोन्स जो हैं वो किडनी की डिफरेंट लोकेशंस पे हो सकते हैं, एंड दोज आर लाइक कॉजेज ऑफ कॉजिंग मैनी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, नॉट ओनली द किडनी फेलियर. अब स्टोन्स को हमने डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन. सो हमारे पास जो इसकी बेसिक जो बेस लाइन है उसकी वो ये है कि एनल ओपनिंग से दी बैक्टीरियाज कैन बी सक्ड अप, और फ्रॉम द फीसेस दैट कैन बी सक्ड अप इनटू द ब्लैडर, और ब्लैडर से फिर आपके पास जब दिस मे ट्रैवल लाइक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दैट मे एक्यूमुलेट हियर किसी भी लोकेशन के ऊपर. किडनी में भी जैसे हमने पढ़ा था कि देयर इज़ पेल्विस, फिर हमारे पास मेडुलरी पार्ट है, फिर कॉर्टेक्स है. तो इन तीनों में से किसी भी पार्ट के अंदर, कॉर्टेक्स में वैसे बहुत कम चांसेस हैं, मेडुला में भी स्टोन्स होने के चांसेस बहुत कम है, बट इनसाइड द पेल्विस एंड यूरेटर्स हमारे पास स्टोन्स हो सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशंस हमने इनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ. फॉर एग्जांपल नेफ्रोलिथियसिस का मतलब है कि आपके पास इट इज़ अ स्टोन प्रेजेंट विद इन द किडनी. ठीक है, नेफ्रो आपको बता रहा है कि इट इज़ रिलेटेड टू नेफ्रॉन,
और नेफ्रॉन की लोकेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है जी यूरोलिथियसिस। यूरोलिथियसिस का मतलब है कि कहीं भी यूरिनरी ट्रैक में देयर इज़ अ स्टोन, और यूरेट्रोलिथियसिस मीन्स देयर इज़ अ स्टोन विद इन द यूरेटर, वाइल द सिस्टोलिथियसिस मीन्स देयर इज़ अ स्टोन विद इन द यूरिनरी ब्लैडर। सो हियर ये आपके पास 4 तरह की चीज़ें हैं with reference to the location of the stone that where it is present actually. Okay, so हम किडनी फेलियर की टाइप्स पे आते हैं और फिर अकॉर्डिंगली हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या कॉजेज के हो सकते हैं। किडनी फेलियर माइट बी क्रोनिक और माइट बी एक्यूट। क्रोनिक का मतलब ये है कि आपके पास इट इज स्लोली प्रोग्रेसिंग और इट इज़ टेकिंग मंथ्स टू ईयर्स टू बिकम लाइक इन फ्रंट ऑफ यू। ये आपको एकदम से पता नहीं चलेगा कि किडनी इज़ गेटिंग ऑब्स्ट्रक्टेड एंड ऑल दैट। तो इसके बहुत सारे मतलब ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंगली चलता है और फिर उसके बाद आपको इसके सिम्टम्स पता चलना शुरू होते हैं। और अगर पता भी चल जाए तो ये बहुत टाइम लेके उसके बाद अगर बहुत टाइम तक वो सिचुएशन चलना शुरू हो जाए तो किडनी फेलियर अकर्स। सो दिस क्रोनिक इन्फेक्शन इज समथिंग इरिवर्सिबल, यानी अगर आपके पास देयर इज़ अ क्रोनिक किडनी इन्फेक्शन और किडनी फेलियर तो दैट कंडीशन में नॉट बी रिवर्सिफाइड, रिवर्स नहीं हो सकती वो, या तो फिर आपको ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ेगा या फिर सर्जिकली वो किडनी रिमूव करवाना पड़ेगा। और एक्यूट की अगर हम बात करते हैं तो एक्यूट इन्फेक्शन इज समथिंग विच इज़ वेरी शॉर्ट टर्म्ड, जैसे हमें कोई माइनरली कोई स्वेलिंग हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया और उसके बाद मेडिसिन दी आपने, एंटीबायोटिक्स दी हैं, दैट इज़ क्योर्ड, तो वो एक्यूट इन्फेक्शन है और वो बहुत एब्रप्टली आपको शो हो जाता है, एब्रप्टली उसके सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं और एब्रप्टली वो विद इन अ मंथ, विद इन बेसिकली सम वीक्स दैट इज़ गोइंग टू एंड। ओके, अगर हम क्रॉनिक इन्फेक्शन की बात करते हैं जो रिवर्सिबल है तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। फॉर एग्जांपल इसके कॉजेज़ में हमारे पास कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियाज के नाम इससे पहले हम ले चुके हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वी आर लाइक हैविंग Neisseria gonorrhea, we are having Treponema pallidum, we are having Escherichia coli, and we are having like Enterobacter। तो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। उसके अलावा आपके पास there might be swelling within glomeruli और ग्लोमेरुलाई में ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाए, ग्लोमेरुलस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो इट माइट कॉज द क्रॉनिक इन्फेक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं इसके कॉजेज़ में। एक्यूट इन्फेक्शंस की बात की जाए तो एक्यूट इन्फेक्शंस आर लाइक बाय द वॉमिटिंग, बाय द एक्सेसिव रिमूवल ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन, बाय डायरिया एंड मैनी मोर। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं जो एक्यूट इन्फेक्शंस कॉज करेंगी किडनी के लिए। सो जो सबसे पहला प्रोसीजर होता है, मैकेनिज्म इसको बैलेंस करने के लिए, दैट इज़ डायलिसिस। सो इन अ वाइल वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट। ओके जी, गोइंग टूवर्ड्स द डायलिसिस। अब बेसिकली किडनी स्टोन्स या कोई भी किडनी इन्फेक्शन हो गया, एक्यूट या क्रॉनिक या वट एवर, सो देर आर सर्टन मैकेनिज्म्स टू लाइक ओवरकम दैट एंड टू ट्रीट दैट। अब उसमें जो हमारे पास पहला ऑप्शन आता है दैट इज़ डायलिसिस। डायलिसिस में बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट हीमोडायलिसिस, तो हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में एक चीज़ कॉमन है, दैट बोथ आर वर्किंग टू क्लीन द ब्लड। एक्चुअली किडनी इज़ नॉट एबल टू क्लीन आउट द ब्लड। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के काबिल नहीं रहता किडनी। सो जो डायलिसिस का मैकेनिज्म है दैट इज़ एन आर्टिफिशियल मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू डू दैट। अच्छा, अब जो डायलिसिस का मैकेनिज्म है वो इतना कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो उसको रेफर करते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट इफेक्टिव जिस तरह से नेचुरली कोई किडनी वर्क कर रहा है। सो हमने क्या कहा कि इट इज़ एक्चुअली द क्लींजिंग ऑफ द ब्लड, इट इज़ क्लीनिंग एक्शन ऑफ द ब्लड एंड इट इज़ थ्रू द हेल्प ऑफ अ मशीन विच इज़ बेसिकली डायलिजर। अब डायलिजर जो होता है, जो मशीन है, दैट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ ट्यूब्स एंड सर्टन मेम्ब्रेन्स। जो मेम्ब्रेन्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ सेलोफोन मटीरियल और ये परमिएबल हैं टूवर्ड सर्टन वाटर एंड आइंस, और ट्यूब्स आर देयर इन ऑर्डर टू कि डायलाइजिंग फ्लूइड जो है, डायलिजेट जो है, दैट इज़ लाइक उसमें से वो पास ऑन हो। अच्छा, अब ये होता है कि हमारी बॉडी में जब डायलिजर को कनेक्ट किया जाता है तो दैट इज़ बाय द हेल्प ऑफ अ कैथेटर।
कैथेटर की हेल्प से हमारी बॉडी से वो कनेक्ट कर दिया जाता है और एक सेकंड कैथेटर होता है जिससे वो हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको लेके बाहर मूव कर जाता है। अगर हम डायलिसिंग मशीन को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो हमारे पास एक पंप होता है और एक कंटेनर होता है। जो पंप है दैट इज़ यूजली टू सक आउट दैट टॉक्सिन मटेरियल्स फ्रॉम दी बॉडी, और जो कंटेनर है उसके अंदर आपके पास ये ट्यूब्स और मेम्ब्रेन्स आर देयर। अच्छा, अब अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट डायलिसिंग करानी हो तो आपके पास ये होता है कि एक शंट से लाइक जो आर्टीरियो वेनल नोड होता है वहाँ पे इट इज़ कनेक्टेड, जैसे आपके पास कैनोलाज होते हैं तो वहाँ से कैनोलाज पास होते हैं और वो परमानेंटली उसको अटैच कर देते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डायलिसेट, तो डायलिसेट वो फ्लूइड होता है जो इसके अंदर से पास ऑन हो रहा था। बेसिकली होता ये है कि इफ़ दिस इज़ द मशीन, तो डायलिसेट उस मशीन के, यानी ये मशीन है आपके पास, ये बॉटम है इसका, ये टॉप है। अब डायलिसिंग फ्लूइड जो होता है, जो डायलिसेट होता है वो यहाँ से पास ऑन हो रहा होता है डायलिसिंग फ्लूइड, और यहाँ जो टॉप होता है मशीन का वहाँ से मूव ऑन हो रहा होता है, वहाँ से निकल रहा होता है, एग्जिट कर रहा होता है। So here जो डायलिसेट है, this is the thing which is going to attract certain toxins and certain nitrogenous waste and all that. So आपके पास क्या होता है कि एक कैथेटर से बॉडी से ब्लड आ रहा है उस मशीन के अंदर, वहाँ से क्लीन हो रहा है, और क्लीन होने के बाद जो आपके पास क्लीन ब्लड है वो सेकंड कैथेटर के थ्रू बॉडी में मूव ऑन करे। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियल कैविटी इज वर्किंग लाइक दैट, जो आपके पास जहाँ से डायलिसिस परफॉर्म होना है। दो कैथेटर्स हैं जी इसके अंदर, और बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी से ये कनेक्टेड है थ्रू दी सर्जिकल प्रोसीजर। और अगर हम इसमें डायलिसेट की बात करते हैं तो यहाँ पर डायलिसेट में मटेरियल्स आर लाइक मॉलिक्यूल्स आर too larger that they are not going inside the abdominal cavity. When the blood is going through that, जब वेसल्स में से पास हो रहा है तो ये जो डायलिसेट है दैट इज़ गोइंग टू, डायलाइजिंग फ्लूइड कह लें आप इसको, दैट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट सर्टन थिंग्स फ्रॉम देयर, और आपके पास वहाँ से ये इतने लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं कि ये डायरेक्टली एब्डोमिनल कैविटी में पास नहीं होता बल्कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रहता है। सो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आपके पास ये रहता है, और एब्डोमिनल कैविटी से जितना भी ब्लड पास ऑन हो रहा होता है इनसाइड दी कैपिलरीज एंड वेन्स, वेन से तो खैर डीऑक्सीनेटेड ब्लड पास होता है, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। सो हेयर इट इज़ टू कलेक्ट दैट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम देयर, और वहाँ से फिर आपके पास वो सेकेंड कैथेटर से रिमूव हो जाता है फ्रॉम द बॉडी। सो जो पेरिटोनियल डायलिसिस है दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ बिट मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू दी हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस को इतना ज़्यादा इफेक्टिव कंसिडर नहीं किया जाता, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं वर्क करी उस स्पेस के ऊपर, और किडनी की जो फंक्शनिंग है वो उतनी, दैट इज़ बेसिकली ये बहुत लथार्जिक इफेक्ट्स कॉज करता है, बिकॉज आपकी बॉडी से पूरा ब्लड पास ऑन हो रहा होता है और वो आर्टिफिशियली क्लीन हो रहा होता है। सो दैट इज़ नॉट जस्ट लाइक दैट ऑफ दी किडनीज, जैसे वो नेचुरल एक वर्किंग हो रही होती है। सो आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ नॉट द सोल्यूशन and the patient have to go towards the kidney transplant. So we will discuss that in a while. Okay, coming towards the kidney transplant, if there is the chronic kidney infection, तो वो curable नहीं है, irreversible है, so the patient must go towards the kidney transplant. और kidney transplant basically ये है कि the kidney is replaced by a fully functional kidney instead of वो वाला जो वर्क नहीं कर रहा किडनी, उसकी जगह पे एक fully functional kidney आ जाए। और बेसिकली उसकी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम उसको इंजेक्ट करते हैं किडनी को। अब यूजुअली जो किडनी लिया जाता है इन ऑर्डर टू ट्रांसप्लांट दैट इज़ फ्रॉम दी डिजीज़ सोर्स, डिजीज़ कोई पर्सन है या फिर कोई जो आपके पास लिविंग है पर्सन लेकिन वो आपके क्लोज रिलेटिव्स में हो तो वहाँ से किडनी लिया जाता है। अब बेसिकली जब किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो दो चीज़ें देखनी होती हैं, जो रेसिपिएंट और डोनर है उनका एक तो ब्लड लेवल मैच करना चाहिए, सॉरी नॉट ब्लड लेवल एक्चुअली इट्स ब्लड टाइप, जो ब्लड ग्रुप है वो मैच करना चाहिए, ब्लड ग्रुप शुड बी मैचिंग। और सेकंड पे हमारे पास है जी HLA मैचिंग, बेसिकली दिस इज़ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैचिंग, जिसको नॉर्मल लेमैन टर्मिनोलॉजी में टिश्यू मैचिंग भी कहते हैं। सो दिस ये दोनों चीज़ें मैच करने के बाद दिस इज़ डिसाइडेड कि इसको ट्रांसप्लांट करना है या नहीं। इफ़ दिस इज़ मैचिंग तो फिर आपका ट्रांसप्लांट सेफ होता है, फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। सो नाउ इफ़ दैट किडनी जो जिसकी जगह पे आपने उसको प्लेस करना है, इफ़ दैट इज़ नॉट कॉजिंग दी हाई ब्लड प्रेशर एंड समथिंग लाइक इन्फेक्शियस थिंग, तो वो उसको वहीं रहने दिया जाता है, बल्कि जो नया वाला किडनी है उसको लोअर एब्डोमेन में प्लेस किया जाता है।
और बेसिकली यहाँ पे आपके पास किडनी ट्रांसप्लांट इज़ कम्प्लीटेड। और जो इसमें ज़्यादा इशू आता है दैट इज़ दी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। समटाइम्स आपकी बॉडी आपके पास इस ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर देती है। अच्छा, ओके जी, कमिंग टूवर्ड्स दी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दिस किडनी ट्रांसप्लांट। सो किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड हमें जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है दैट इज़ दी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। समटाइम्स हमारी बॉडी उस ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर देती है, आइदर दिस के टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग हुई भी है स्टिल भी। सो होता क्या है कि बेसिकली इसमें बी और टी लिम्फोसाइट्स आर देयर टू प्ले देयर रोल, और दे थिंक दैट दिस इज समथिंग फॉरेन कमिंग इनसाइड द बॉडी, और वो फॉरेन एजेंट समझ के इसके अगेंस्ट रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। लाइक दे आर एक्टिवेटिंग दी न्यूट्रोफिल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स ऑफ द बॉडी इन ऑर्डर टू कि वो इसके ऊपर अटैक करें और इस बेसिकली इस ट्रांसप्लांट की रिजेक्शन के लिए। सो अब क्या होता है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो मेडिसिन दी जाती हैं दैट आर हाई इन स्टीरॉइड्स, हायर स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, और बेसिकली उसके अंदर भी साइक्लोस्पोरिन्स एक क्लास है स्टीरॉइड्स की मेडिसिन की जो दी जाती हैं। दैट स्टीरॉइड इज़ गोइंग इन साइड योर बॉडी, और उसकी वर्किंग ये है कि वो एंटीबॉडी की जो मैचिंग है वो नहीं होने देती, और बेसिकली जब वो मैचिंग नहीं होती तो डेफिनेटली फिर वो एंटीजन समझ के इस पे एक्ट नहीं कर सकते, उसको रिजेक्शन की तरफ नहीं चीज़ जा सकती। सो टू मेक इट सेफर आपके पास साइक्लोस्पोरिन्स और डिफरेंट स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं ताकि किडनी ट्रांसप्लांट जो है सेफ रहे। बट रिजेक्शन कैन अकर लाइक आफ्टर 12 to 13 to 15 years afterwards this transplantation. 12 to 13 years तक the life is going to be balanced and all that is going good, but last पे फिर आपके पास दोबारा से 15 years के बाद ट्रांसप्लांट में प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं if there is. So that's all from my side. Thank you so very much.